Hare Krishna. Keep your devices in mute. Please keep your devices in mute. Hare Krishna. Please keep your device in mute. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. We will continue with the remaining part of the chapter. So, just like a man who performs a sinful act, and like a seed, it takes time to fructify. कभी-कभी सोचते हैं हम कि why is a person who's performing sinful activities, तो उनके पाप का जो हरे कृष्णा जो हमें देखना चाहिए रिएक्शन, हम क्यों नहीं देख पा रहे? Why we are not able to see that reaction? So that is because of this philosophy. बीज बोने के तुरंत बाद पौधा नहीं मिलेगा, पेड़ नहीं बनेगा, कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा. So apparently it looks like all the sinful persons are enjoying their life, लेकिन law of karma will catch. So there are different stages. The sinful action may have already stopped within the individual, but the results or the fruit of that sinful action are still enjoyed. तो पाप कार्य उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो अभी भी भोग रहा है. So there are sins which are still in the form of a seed. और कुछ ऐसे पाप है जो बीज के रूप में ही है, अभी अंकुर नहीं बना है. And there are others which are already fructified. कुछ ऐसे पाप कार्य है जिनका बीज का पौधा बन चुका है और कुछ पेड़ भी बन चुके हैं, कुछ पेड़ में फल भी आ चुके हैं जिसको वो भोग रहा है. So in the form of distress and pain, तो दुख और दारिद्र के मतलब माध्यम से वो उस फल को भोग रहा है. A person who has completely ended the reactions of all sinful activities and was fully engaged in pious activities, being free from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service. कौन भक्ति में आ सकता है? So the answer is जो तेषाम अंतर्गत पापम, the one who has completely ended the reactions of all his sinful activities. So और जो पुण्य कार्यों में लगा हुआ है वही बाद में भक्ति में आ सकता है, because he is free from duality of this material world. इस भौतिक जगत का द्वंद्व से वो विमुक्त हो जाता है और उस तत्पश्चात वो he can become engaged in devotional service to the Supreme Lord. तो इसके बाद वो भक्ति में भगवान के भक्ति में वो कार्य कर सकता है. So purifying potency of devotional service is very strong. जो भक्ति का जो शुद्धिकरण शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली है. And it is called pavitram uttamam. So in the shloka we learnt that devotional service, so Bhagavad Gita अध्ययन भी devotional service है. So it is pavitram idam uttamam. So even this knowledge, Bhagavad Gita, which is a part of devotional service, is pavitra. It is pure, uttama. It is the topmost purity. Then, so uttama means transcendental, divya. Tama, uttama. Tama के ऊपर, tama को पार करते हुए. So devotional activities are never to be considered material. जो भक्ति का कार्य है वो कभी भौतिक कार्य से तुलना नहीं कर सकते. Although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men, लेकिन ऐसा बात होता है कि भक्त भी वही कार्य कर रहे हैं. वो भी उठते हैं, फिर अपना दिन शैली में लग जाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर डोनेशंस मांगते हैं. तो वो भी अपने अपने कार्य में लगे हैं जैसे कि भौतिक लोग लगते हैं. तो it looks similar but it is not. So the execution of devotional service is so perfect that one can perceive the results directly. तो भक्ति का जो नतीजा है, रिएक्शन है, वो हम प्रत्यक्षावगमन, that's what Krishna says. It is very easily seen. उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा. So this direct result is actually perceived. So ये हम भक्तों में देख सकते हैं ये परिवर्तन. And we have practical experience that
any person who is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो भगवान बोल रहे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भी हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहा है उनमें देखा जाएगा, आप देख सकते हो, इन कोर्स ऑफ टाइम it feels he feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. तो आपके मंदिर में भी आप देख चुके होंगे कि कोई पहली बार आया, फिर उसको आरती अच्छा लगने लगा, फिर वो जपा अच्छा लगने लगा, फिर वो धीरे धीरे अनेक बार आने लगा, फिर वो सेवा स्टार्ट किया, वॉलंटियर सर्विस स्टार्ट किया, प्रसादम पाया, और धीरे धीरे उन्होंने पैंट शर्ट पहनना छोड़ दिया, तिलक पहनने लगा, धोती कुर्ता पहनने लगा, भक्तों के संग रहने लगा, कंठी माला पहनने लगा, हाथ में हमेशा जप माला रहता है. So this kind of changes, not only maybe we have seen in ourselves, we have seen in many people around us. So what is all this? This is living example. एक लाइव एग्जाम्पल है, प्रूफ है हमारे लिए कि भक्ति सुसुकम कर्तुम अव्ययम. इट्स वेरी इजी to perform devotional service if somebody is ready to follow the process. Otherwise it is always difficult. चाहे जितना भी हम प्रयास करें, जिस व्यक्ति को इसका मौल्य नहीं पता है उसको भक्ति बहुत कठिन लगेगा. जो भक्ति का वैल्यू जानता है उसको बहुत ही आसान लगेगा, सुसुकम, और वो बहुत ही आनंद से भक्ति करेगा. If somebody is doing bhakti, devotional service, and is always sad, मतलब वो भक्ति दिव्यता से ट्रांसेंडेंटली इज नॉट डूइंग, वो मेटीरियल प्लेटफॉर्म में ही कर रहा है, क्योंकि वो यही खोज रहा है, ये करने से मुझे क्या मिलेगा, ये देने से मुझे क्या मिलेगा, इतना दे रहे तो वापस क्या मिलेगा, यही देख रहे हैं. सो लेन देन बना दिया, बिजनेस बना दिया भगवान के साथ. तो भगवान भी बड़ा बिजनेसमैन है, उनको जो चाहिए भौतिक चीजें वही देगा. कृष्णा इज रेडी टू गिव हिमसेल्फ to his devotee. He is even ready to fall at the feet of his devotee. राधा रानी के पैर को छूते हैं कृष्णा, because she is the topmost devotee. लेकिन और युधिष्ठिर महाराज का पैर धोया भगवान श्री कृष्णा ने, not only because he was elderly but because he was a devotee. तो भगवान अपने आप को देना चाहते हैं, लेकिन हम we are miserly, we settle with small things. भगवान मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, जिसको यहीं पे छोड़ के जाना है, जो नश्वर है, मतलब जो शाश्वत नहीं है, वही चीज हम मानते हैं. जो शाश्वत चीज है भगवत प्रेम, वो नहीं मानते हैं. So furthermore, if one engages not only in hearing but in trying to broadcast the message of devotional activities, if he engages himself in helping the missionary activities of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. Or why we must get attached to a temple, especially a temple where Krishna consciousness is being propagated, especially centers like Hare Krishna movement, ISKCON centers. Why we must get attached? Why can't we do bhakti in our house? प्रभुपाद ने तो हमें टेम्पलेट दे दिया, घर बैठ के भक्ति कर सकते हैं, घर बैठ के भक्ति कर सकते हैं. लेकिन इफ यू वांट टू रीपे योर स्पिरिचुअल मास्टर, तो उनका मंदिर है, तो वी मस्ट गो एंड सर्व देयर. तो सिर्फ वी कैन नॉट जस्ट टेक फ्रॉम प्रभुपाद. We take from Prabhupada, we can do devotional service in the house. What are we giving in return? We are going to go to his temple. वृंदावन चंद्रोदय मंदिर प्रभुपाद का टेम्पल है, उस गुरु का टेम्पल है, तो वहां जाके गुरु का सेवा करेंगे. गुरु राधा वृंदावन चंद्र का सेवा कर रहे हैं, भव्य मंदिर बना रहे, उसमें हम अपना हाथ बटाएंगे. जो भी हमें वॉलंटियर सर्विस मिलेगा, जो भी हमें एम्प्लॉयमेंट सर्विस मिलेगा, तो हम उसमें अपने आप को लगाएंगे. So that is why we must get associated with the temple to express gratitude to spiritual master and give back our time, energy, intelligence, wealth, and our life in the cause of the spiritual master. So this advancement in spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. तो पूर्व कोई अर्हता नहीं चाहिए इसके लिए, पूर्व कोई विद्या नहीं चाहिए इसके लिए, बस भाव चाहिए. So in Brahma Samhita, Lord Brahma says, यद भाव भावितो दियो मनुजास तथैव. तो जो भक्त है वो भाव भाविता दियो, so with the intelligence
and with bhava, he is expressing his love for Krishna by engaging in devotional service. How do you express your gratitude to someone? By doing something in return. That is why we must get associated with a temple. Otherwise, yes, you can always sit in the house and do bhakti, but then we'll be an ungrateful person if we just do only that. So in Vedanta Sutra, it is also described in the following words: Prakashascha karmani abhyasat. Devotional service is so potent, तो इतना शक्तिशाली है भक्ति, that simply by engaging in activities of devotional service, केवल भक्ति का जो कार्य है वो करने से क्या होगा? One becomes enlightened without a doubt. असंशया वो becomes self-realized, enlightened. तो ज्ञानवान हो जाएगा. आत्म साक्षात्कार उनको मतलब आत्म साक्षात्कार वो कर सकते हैं. So Narada happened to be the son of a maid servant. Previous life में नारदा एक दासी का पुत्र थे और दासी का भाग्य था कि वो जो भक्त आते थे, साधु आते थे, उनका उच्छिष्ट वो उनको मिलता था और उनके बर्तन, उनके जूठे को उठाने का उनका सुनहरा अवसर मिला था. So this was Sukruti that she had got. She shared the Sukruti with her son. That is, then in the next life who became Narada. Narada in the previous life ate uchishta of sadhus. He removed their leaves, the plantain leaves where they were eating food, and he served the sadhus this way. And because of that, he was blessed with becoming Narada in his next life, one of the topmost devotees of Lord Narayana. So when his mother was engaged in serving great devotees, Narada also became engaged. So देखिए how important a role parents play in our life, because बच्चे को आप जितना चाहे बोलिए कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन वो कैसे सीखेगा? वो आप जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उसी से सीखेगा. So it's better to be a good practical example than just theoretically try to guide children. So here Narada's mother is showing him what has to be done. She is doing it and she is allowing her son to do it in his previous life. So Narada tells his disciple Vyasadeva that in a previous life he was engaged as a boy servant of purified devotees during Chaturmasya. Chaturmasya के period में वो साधु संत का सेवा उन्होंने शुद्ध मन से किया था. He was intimately associating with them. बहुत निकट हो गए थे साधु संतों के. Sometimes those sages left remnants of food on their dishes. तो कभी-कभी साधु उच्छिष्ट छोड़ देते थे, तो ये लड़का उस उच्छिष्ट का सेवन करते थे. महाप्रसादम हो गया था. And they gave their permission to do so. तो साधु इस लड़के को देखते हुए उन्होंने उनको अनुमति दे दिया, आप हमारा उच्छिष्ट खा सकते हैं, क्योंकि उनको पता था भक्तों का उच्छिष्ट खाने से परम प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम मिल जाएगा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. So he just emulated his mother, who was fortunate. She maybe did not know what she was doing, but she was fortunate to get this Sukruti. So we'll move further. As I said, it's a big purport, because the 9th chapter, first 3 verses, a lot of importance is being given. So as he went on eating, he gradually became as pure-hearted as the sages. केवल साधु के उच्छिष्ट खाने से साधु जैसे पवित्र बन गया. Then the great devotees relished the taste of increasing devotional service of the Lord. और ये ऐसे भक्त थे जो सदा भगवत प्रेम का रुचि अपने अंदर रखते थे. तो यही भाव नारदा को पिछले जिंदगी में प्राप्त हो गया. So therefore he quotes from Vedanta Sutra, Prakashascha karmani abhyasat. One is engaged simply in the acts of devotional service, everything is revealed to him automatically. तो भक्ति का सेवा करते रहने से जो हमें चाहिए, ददामि बुद्धि योगम तम. Krishna says, I will give him intelligence, how he can continue his devotional service and rapidly progress and come back to me. So हमें उसके लिए भी सर खराब नहीं करना चाहिए, बस हमें सही रास्ते में जाना चाहिए. सही रास्ता कौन सा है? जिस मार्ग में भक्त जा रहे हैं.
जिस मार्ग में प्रभुपाद के आदेश से भक्त निकल रहे हैं उसी मार्ग में हमें जाना है। जाने से क्या होगा, शीघ्र ही हम भक्ति का प्रतिफल हमें मिलेगा, दैट इज कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। सो एंड इट इज प्रकाशा, प्रकाशा मीन्स इट इज डायरेक्टली परस्यूड, ये हम देख सकते हैं, आप अपने जीवन में देख सकते हैं कुछ साल पहले कैसे थे हम, आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे इस ग्रुप में, आप जानते हो वो कैसे थे और अभी वो कैसे हैं। सो दैट प्रोग्रेस इज देयर फॉर अस टू सी, इट नॉट सिंपली थियोरेटिकल। सो आचार्यवान पुरुषो वेदा, one who is in association with great acharyas, even if he is not educated, even if he has not studied Vedas, he can become familiar with knowledge necessary for realization. Acharyavan Purusho Veda. केवल गुरु का सेवा करने से हमें सारे वेद का ज्ञान मिल जाएगा। So the process of devotion service is a happy one. सुसुकम कर्तुम अव्ययम, कोई कष्ट पाके भक्ति सेवा कर रहा है, मतलब वो भौतिक मानसिकता लेके सेवा कर रहा है, वो प्रेम भक्ति का सेवा नहीं कर रहा है, वो साधना भक्ति का सेवा भी नहीं कर रहा है, वो तो मेटेरियलिस्टिक सेवा कर रहा है। बट एनी काइंड ऑफ सेवा इज गुड। सो इन एवरी स्टेट डिवोशनल सर्विस इज जॉयफुल, हर हाल में भक्ति सेवा सुसुखम है, हम हमेशा आनंद आनंद से करेंगे। और अगर नहीं कर रहे मतलब हमारे अंदर कोई खोट है, हमारे अंदर कोई कमियां हैं, इसको हमें सुधारना है, भक्तों का एडवाइस लेना है, भक्तों से बात करना है, भक्तों को बोलना है कि आपको ऐसे लग रहा है, आपको ऐसे हो रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, और जो मार्ग वो देते हैं उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। And Krishna is telling a very simple process how to do devotional service. Patram pushpam phalam toyam यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी देना है दे दीजिए इनमें से, लेकिन भक्ति से देना है। ऐसा नहीं कि प्लेट रख दिया और चल दिए। With lot of love you must invite Krishna to come and honor, to come and eat that bhoga and convert it into Mahaprasadam. So regardless of social position, it will be accepted if offered with love. चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, प्रेम से जो भी भेंट देंगे कृष्णा को, वो तुरंत उसको स्वीकार करेगा। तो प्रेम का मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण, उनका सारा लीला भी प्रेम का ही लीला था। राक्षसों का वध करना भी प्रेम का लीला था। कैसे? जैसे जैसे वो राक्षस को मारते गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शिशुपाल, दंतवक्त्र, ये सब उनके डोर कीपर्स थे वैकुंठा में। दे आर दी कैन से दैट एटर्नल डोर कीपर्स एट वैकुंठा। कुछ कारणवश उनको भौतिक दुनिया में आना पड़ा और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनना पड़ा, जिसको नरसिंहदेव ने मारा। फिर रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा, जिसको राम जी ने मारा, जो नरसिम्हा है। और दंतवक्र शिशुपाल बने, जिनको कृष्ण ने मारा, जो रामा है, जो नरसिम्हा है। तो उसके बाद 3 जन्मों के बाद वो वापस चले गए वैकुंठ लोक। तो ये भी प्रेम है कृष्ण का, बिकॉज ही वांटेड टू कंप्लीट द सिंफुल रिएक्शंस, फिनिश द सिंफुल रिएक्शंस ऑफ हिज प्योर डिवोटीज हु वर सर्विंग हिम इन वैकुंठा। तो अपने हाथों से वध करके उनको मोक्ष, परम मोक्ष दिला दिया। So here it is mentioned God accepts only the love with which things are offered to him. भगवान प्रेम का भूखा है, ऐसा नहीं कि is dependent on that love, but it's like a father who wants his son to love him. It's not that he's dependent on it, but obviously a father will appreciate that love and he will want such kind of a love. So further, devotion service is eternally existing, अव्ययम, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा तो किसी का भक्ति अगर रुक गया है तो सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ है, इट्स नॉट ओवर। बिकॉज जब उसको फिर भगवान कुछ घुमा फिरा के फिर भक्ति में लेके आएंगे, जहां पे उसने छोड़ा था वहां से प्रारंभ करेगा, नॉट फ्रॉम जीरो। अगर हम कुछ पैसे खो दिए, अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो एंड अर्न दैट मनी। लेकिन भक्ति में अगर हम कुछ कारणवश
भटक गए, तो उसी पोजीशन से जब भगवान प्रेरणा देगा, उसी पोजीशन से हमें आगे हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पीछे जाके आगे बढ़ेंगे। सो एक्चुअल डिवोशनल सर्विस बिगिंस आफ्टर लिबरेशन। तो भक्ति का जो असली सेवा है मोक्ष के बाद ही मिलेगा। मोक्ष क्या है? भौतिक मानसिकता से मुक्ति। मतलब मेरे लिए, मेरा ये सोचने का जो ध्येय है, जब कोई भक्त बंद करेगा तो वो इज लिबरेटेड, बिकॉज इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू सेटिस्फाई कृष्ण, कैसे कृष्ण भगवान को संतृप्त करें। So without coming to the stage of devotional service, one cannot understand what is personality of Godhead. तो भक्ति सेवा करने से ही भगवान को हम जान सकते हैं, वरना भगवान को कभी हम जान नहीं पाएंगे, उसका प्रेम हम कभी पा नहीं पाएंगे। So and by hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita from realized source, he can understand the signs of Krishna. तो भक्तों से जब विज्ञान, भगवत विज्ञान कोई सुनेगा, श्रवण करेगा, तभी वो भगवान के बारे में जान सकता है। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। तो when one's heart is cleared of all nonsense, then one can understand what God is. जो सारे कल्मश है हमारे हृदय के अंदर, जब वो मिट जाएगा तभी हम भगवान को जान पाएंगे, वरना भगवान को जान नहीं पाएंगे। So, thus the process of devotional service of Krishna consciousness is the king of education, the king of confidential knowledge, Raja Vidya, Raja Guhyam. It is the purest form of religion and it can be executed joyfully without difficulty. Prabhupada is always telling in many places, what is the difficulty? इतना क्या कष्ट है, इतना भी नहीं कर सकते, ऐसे बोलते हैं। प्रभुपाद को किसी ने बोला बहुत ऑस्ट्रियर है, बहुत तपस्या है इसमें। तो क्या तपस्या कर बोला है मैंने खाना बंद कर दिया है क्या? मैंने आपका एंजॉयमेंट्स बंद कर दिया है क्या? मैंने बोला है कि अगर आपको ब्रह्मचारी नहीं रहना है तो शास्त्रोक्त आप विवाह कीजिए और आप इंद्रिय सुख भोगिए, लेकिन जैसे एक गृहस्थ को करना चाहिए वैसे कीजिए। और खाने पीने के मामले में तो हम निश्चित है, हम तो वी ईट रिच प्रसादम। तो आपको क्या कष्ट हो गया, भूखे है क्या आप? ऐसे प्रभुपाद जी उनको पूछते हैं, क्या आप मतलब सुस्त है, क्या आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं आपके प्रोसेस डिवोशनल सर्विस? सो व्हाट इज द डिफिकल्टी? क्यों आप उसको एक ऑस्टेरिटी बता रहे? मैंने तो ऐसे नहीं बताया, नो मीट ईटिंग बताया मैंने। He says, and that is good for your health. Even modern age scientists and doctors tell you must not eat red meat, you must reduce it. इतना तो बोलते हैं। जुआ मत खेलो, कितने घर बर्बाद हो गए, तो उसमें क्या गलत बोल दिया? उसमें ऑस्टेरिटी क्या है? वो करने से घर बर्बाद हो रहा है, मत करो ना, तो ऑस्टेरिटी कैसे हो गया? और दारू मत पिए हो, मादक पदार्थ मत लो। आप नहीं जानते कितने ऐसे केसेस आप जानते हो, कितने ऐसे मतलब न्यूज में आते हैं कि घर बर्बाद हो गया किसी के पीने से, पत्नी और अपने बेटों को, अपने बेटियों को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, द्रव्य पदार्थ लेने से खुद अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया, और नशे में माँ बाप का खून कर डाला पैसे के लिए क्योंकि वो नहीं दे रहे थे। सो इट इज डिस्ट्रॉइंग होम्स। So what is wrong with that? And no illicit sex. What is wrong with that? What is wrong with that instruction? Is what Prabhupada says. घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं ये सब करने से, तो मैं मत करो बोल रहा हूँ, उसमें ऑस्टेरिटी क्या आ गया? तो ऐसे प्रभुपाद जी समर्थन करते हैं अपने आदेशों का। So this is the role Guru plays. Like I told, the whole class we spent discussing shloka number 2 because it's a long purport and a very important purport. So what is the role of Guru? Somebody asked me this question a few days ago. Guru means heavy, भारी। भारी मतलब क्या? मोटे है? No, भारी मतलब he is heavy with knowledge. He is heavy with that knowledge which is going to take us back to Krishna. So and दुनिया का सारा संसार एक तरफ, गुरु का प्रवचन एक तरफ, तो गुरु का पल्ला भारी पड़ेगा, and we must follow and we must go in the direction that
Guru gives us. So his opinion presides over everything else. प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने जो कहा वो हमारे लिए वेद वाक्य है, और उन्होंने वेदों से ही कहा है, ऐसा नहीं कि अपने मन से उन्होंने बोला है। तो उन्होंने जो, लाइक प्रभुपाद सेड, व्हाई एम आई सक्सेसफुल, क्योंकि मैंने अपने गुरु का जो आदेश था, वन लाइन आदेश था, मेरे जीवन का मतलब लक्ष्य बना लिया मैंने। I made it the goal of my life and I went after it with all passion in terms of bhakti. तो मुझे करना ही था, मेरे गुरु का आदेश पालन करना ही था। सो दुनिया एक तरफ, गुरु का आदेश एक तरफ। जब गुरु का आदेश पालन करने के हेतु हम कुछ करेंगे, हमारा कल्याण होगा। So thank you very much for being with me today. Many of you have joined late, better late than never, but please try to join on time. We will meet again tomorrow. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki